Namaskar and pranam to all of you. Again, I am coming back to my channel Asit Government Tool Guru. Today, I will discuss official procedure part 3. It is very important one. Within short while, my friends will face UPSC principal exam. And this part is very important one. And also this video would be useful for UPSC vice principal exam and for other departmental exams and for other official purposes also. This video would be useful one. So my friends, please subscribe my channel, like my video, share my video and comment my video. And in subsequent time also you can get some nice videos. So I do not want to waste more time now. My friends, just I am going to discuss official procedure part 3. First one, you see some definitions, glossary. First one, Central Registration Unit, CRU, a unit within a department assigned with the responsibility of receiving, registering and distributing DAC meant for that department and includes functionaries like resident clerk. Clear? So actually Central Registration Unit, one responsibility is there, a residential clerk is there. His main responsibility is receiving postal materials, registering the materials and distributing it to the concerned departments. Clear? Often alternate name, very common name is, it is issue section or Central Registration Unit or Central Receipt and Issue section are used interchangeably. So very common name is issue section. Okay, clear? So CRU, resident clerk is there receiving all the DAC materials, postal materials mentioned in the register and then distributing it to different sections of the department or different branches of the department, right? So very popular name of this CRU alternate name is issue section, right? Next one, classified DAC means DAC bearing a security grading, urgent, important, most important, like this. Okay, so what type of postal materials actually receiving by the resident clerk? First one, he must check, he must classify the DAC according to the urgency, important, very important, like this. So it is classified DAC, categorization of the DAC materials. Next one, citizen charter. Also this concept is very important one. It is citizen friendly one because always the administration do work according to the need and requirement of the citizen. So in an instrument which seeks to make an organization transparent, accountable and citizen friendly, the objective of framing a citizen's charter is to build a bridge between the citizens and the administration. The one congenial and healthy relation should be there between the administration and citizens. Always the administration must be citizen friendly one. Clear? Always administration do the work according to the need and requirements of the citizen, right? So that due to this, the administration would be transparent one, accountable one and citizen friendly. Deal with the public properly, right? Transparently, providing information to the citizens in time if they need, if they approach, right? So it is the citizen's charter. Next one, comeback case. Another term, a case received back for further action. Further action means उसको re-examine किया जाएगा. Preparing a draft or summary of the case. इसके ऊपर draft और एक summary, उसके ऊपर एक briefing summary लिखा जाएगा.
or a process in line with written instructions of senior officers. So such cases are to be dealt with immediately. The comeback case, actually again the case received back for further action. Again it would be re-examined, draft or summary would be prepared related to the comeback case. Any type of written instruction also required, then also it must be recorded. And then actually these type of comeback cases should be dealt immediately, urgently. Right? समझ में आ गया? Next one, correspondence portion. Correspondence, you know, information like letters, notices, memorandum, ये सब correspondence है. वो वही दिया है, portion containing receipts and office copies of documents issued pertaining to the subject matter of the file, including self-contained briefs and inter-departmental notes, but excluding those recorded on the notes portion of the file itself. जो भी डॉक्यूमेंट्स हम रिसीव कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट्स हम सेंड कर रहे हैं, ये सब आ जाएगा कॉरेस्पॉन्डेंस में. बेसिकली वन टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन. ओके, द ऑफिसेस आर गेटिंग, sometimes the offices receiving some documents and also sending documents, okay, related to the subject matter of the file. जो भी particular case है कि particular activity है, okay, तो ये है correspondence portion. मगर इसमें क्या है, जो फाइल में जो नोट पोर्शन जो फाइल में है, जो फाइल में जो नोट पोर्शन को रिकॉर्डेड किया जाता है, उसको यहां पर एक्सक्लूड कर देना है. यहां पर आपको याद रखना है, जस्ट यू रिमेंबर, दोस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफिसेस आर रिसीविंग एंड ऑल्सो इंफॉर्मेशंस सेंडिंग, ओके, टू अदर ऑर्गेनाइजेशंस, टू अदर एजेंसीज. ओके, इट इज कमिंग बट इट इज इंक्लूडेड इन द कॉरेस्पॉन्डेंस पोर्शन, राइट? So it means information and communication, those type of information and communications received by the office and sending by the office. चलो नेक्स्ट वन, current file means a file action on which has not yet been completed. current file का केस क्या है, इसमें एक्चुअली पूरा एक्शन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी काम चल रहा है. एक्शन ऑन which has not yet been completed, केस को डिस्पोज नहीं किया गया है, अभी प्रोसेसिंग स्टेज में है. जो पर्टिकुलर फाइल में जो केस है वो प्रोसेसिंग में है, अभी उसके ऊपर एनालिसिस चल रहा है. क्लियर? अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया है, उसके ऊपर एक्शन रिएक्शन चल रहा है, राइट? तो वो है करेंट फाइल. नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन. डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो ऑफिस प्रोसीजर का मैनुअल है, सपोज उसमें कुछ मॉडिफिकेशन होता है, सपोज देयर इज मॉडिफिकेशन related to the manual of the office procedure, it is possible only due to the departmental instructions issued by the department to supplement or vary the provisions of the manual of the office procedure. ऑफिस प्रोसीजर में जो भी प्रोविजंस है उसमें कुछ चेंजेस, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन ऑफ द डिपार्टमेंट, उसको बोलेंगे डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन. मॉडिफाई द प्रोविजंस ऑफ द मैनुअल ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर. ओके, वेरी द प्रोविजंस ऑफ द मैनुअल ऑफ द ऑफिस प्रोसीजर. ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा सपोज ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस है उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल कर देना है, तो ये सब डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन से होता है, राइट? चलो नेक्स्ट वन, डिपार्टमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. एनी ऑफ द मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज एंड ऑफिसेस मेंटेन इन द फास्ट शेड्यूल, इसको याद रखना है, फास्ट शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. एंड अनदर वन, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961, इसको याद रखना है. शेड्यूल 1, फास्ट शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो रूल है एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 का फास्ट शेड्यूल में क्लियरली मेंशन है. एनी ऑफ द मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज एंड ऑफिसेस, जो भी ऑफिसेस मेंटेन होता है, ओके, फास्ट शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अकॉर्डिंग टू द फास्ट शेड्यूल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, allocation of business rules 1961.
इसको हम डिपार्टमेंट को ऐसे डिफाइन करेंगे। ओके, तो इसको थोड़ा याद कर लीजिए, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है, फास्ट शेड्यूल और ये एलोकेशन ऑफ विजिलेंस रूल्स 1961, राइट। तो फास्ट शेड्यूल ऑफ एलोकेशन ऑफ विजिलेंस रूल्स 1961, इट मीन्स मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट, सेक्रेटरीज एंड ऑफिसेस मेंटेन्ड। नेक्स्ट वन, discussed note, a note submitted by the dealing officer after discussion with the section officer, generally in cases where course of action is not clear। कभी कभी कुछ केस में क्या है जो कोर्स ऑफ एक्शन वो क्लियर नहीं है, वो डिस्टिंक्ट नहीं है कोर्स ऑफ एक्शन। इस केस में क्या होगा ना, डीलिंग ऑफिसर कंसल्ट करेगा सेक्शन ऑफिसर के साथ, इसके बाद एक नोट प्रिपेयर होगा, जो भी डिस्कशन हुआ उसके ऊपर नोट प्रिपेयर होगा, उसको हम डिस्कस्ड नोट बोलेंगे। तो फर्स्ट आपको याद रखना है, कोर्स ऑफ एक्शन इज नॉट क्लियर। तो बेसिकली कोई पर्टिकुलर केस, कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी के ऊपर कोर्स ऑफ एक्शन क्लियर नहीं है, तब वो डीलिंग ऑफिसर डिस्कस करता है सेक्शन ऑफिसर के साथ और एक नोट प्रिपेयर होता है, इसको बोलेंगे डिस्कस्ड नोट। नेक्स्ट वन बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉकेटिंग। ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है। मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन द नोट्स पोर्शन ऑफ ए फाइल about the serial number assigned to each item of correspondence, whether receipt or issue, for it is identification। डॉकेटिंग क्या है, जो भी लेटर्स, जो भी मेमोरेंडम, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, चाहे ऑफिस उसको रिसीव कर रहा है कि ऑफिस सेंड कर रहा है, तो उसको नोटेड डाउन किया जाएगा सीरियल नंबर वाइज। तो बेसिकली क्या है, फाइल में उसको नोट्स पोर्शन में उसको एंट्री किया जाएगा। जैसे कोई सर्कुलर आता है, उसका नंबर होता है, सर्कुलर का नंबर, किस डेट में सर्कुलर रिसीव हुआ, सर्कुलर का सेंडर, द नेम ऑफ द सेंडर, पूरा डिटेल्स रहेगा, और सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सर्कुलर। ये होने से क्या है, इजीली हम डिटेक्ट कर पाएंगे। जब हमको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, पर्टिकुलर नोटिस के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए, सर्कुलर के ऊपर इंफॉर्मेशन चाहिए, तो हम इमीडिएटली वो डॉकेटिंग को जाएंगे, जो नोट्स पोर्शन में, फाइल में जो नोट्स पोर्शन है उसका डॉकेटिंग में जाएंगे, उसको डिटेक्ट कर लेंगे आराम से, क्योंकि वहां पर क्लियरली सर्कुलर नंबर है। अभी भी हम जब कोई सर्च करते हैं गूगल में, जैसे कि लिंक हमको मिल जाता है, वैसा ही वहां पर सर्कुलर नंबर, सब्जेक्ट मैटर, किस डेट में वो सर्कुलर आया था, सेंडर कौन था, ये डिटेल्स, वैसे ही हम ऑफिस जब भेजता है जो मटेरियल्स, वो उसका डाटा भी रखता है डॉकेटिंग में। तो इससे पता चल जाएगा कि कौन सा डेट में हम किस तरीके का सर्कुलर हम भेजे थे, किस तरीके का नोटिस भेजे थे। तो ये सब डॉकेटिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। सीरियल वाइज, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज करके रखा जाएगा, डेट वाइज, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डॉकेटिंग, मेकिंग ऑफ एंट्रीज इन द नोट्स पोर्शन ऑफ ए फाइल, राइट। फ्रेश रिसिप्ट को चलेंगे। एनी सब्सिक्वेंट रिसिप्ट ऑन ए केस which brings in additional information to aid the disposal of a paper under consideration। अब एक जो पेपर है वो अंडर कंसिडरेशन में है, कुछ एडिशनल, कुछ इंफॉर्मेशन को हम ऐड करेंगे, ठीक है। जो केस चल रहा है उसमें कुछ फ्रेश इंफॉर्मेशन हम ऐड करेंगे, तो वो एक्चुअली जो फ्रेश इंफॉर्मेशन हम जो ऐड करेंगे वो क्या होगा, सहायता होगा कि केस को डिस्पोज करने के लिए। ड्यू टू द व्हेन द एडिशनल इंफॉर्मेशन इज एडेड, देन इट इज वर्किंग लाइक एन एड फॉर द डिस्पोजल ऑफ द केस, राइट। तो ये है फ्रेश रिसिप्ट। कभी कोई इंफॉर्मेशन ऑफिस को मिलता है, वो एडिशनल इंफॉर्मेशन होता है, और उसके वजह से क्या है, तो केस अच्छे से प्रोसीड होता है और उसके बाद इजीली केस डिस्पोजल होता है। नेक्स्ट वन, लिंक ऑफिसर। लिंक ऑफिसर क्या है, कभी कभी जो ओरिजिनल ऑफिसर है वो एब्सेंट है, उसका काम को लिंक ऑफिसर को दे दिया जाता है। सो व्हेन द कॉरेस्पॉन्डिंग ऑफिसर इज एब्सेंट वन, then automatically his or her work done by the link officer is an officer, section officer and above। वो जो ऑफिसर है उसका रैंक सेक्शन ऑफिसर एंड above, who is assigned the
responsibilities of another officer of comparable rank in the department during the former's absence. जो ऑफिसर उसको हैंडल कर रहा था उसका absence में उसका लिंक ऑफिसर आ जाता है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके काम को वर्क को प्रोसीड करता है, ठीक है, उसको हम लिंक ऑफिसर बोलेंगे, ठीक है, राइट। तो अभी मिनट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ए नोट रिकॉर्डेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, द वाइस प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर और ए मिनिस्टर। जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर, ये जब जो नोट रिकॉर्डेड होगा वो नोट को हम मिनट बोलेंगे। ए नोट रिकॉर्डेड बाय द ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और ए मिनिस्टर, वो जो नोट रिकॉर्ड होता है उसको मिनट कहा जाता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट हम नोट के ऊपर आएंगे। कॉमन चीज है, नोट शीट है, आप जानते हो ऑफिस में। नोट शीट के ऊपर मैं थोड़ा क्लैरिफाई कर देता हूं। तो ये नोट शीट में जब क्या है, सपोज हमको कुछ सजेशन चाहिए, अप्रूवल चाहिए, पर्टिकुलर एक्टिविटी का अप्रूवल चाहिए, ठीक है। क्वेश्चंस को, सपोज कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज किया गया है और कुछ इंफॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, ये सब नोट शीट में आएगा, ठीक है। सपोज फॉर एग्जांपल देखिए, एग्जांपल सपोज एक फाइनेंशियल, सपोज एक डिपार्टमेंट को कि एक सबऑर्डिनेट ऑफिस को कुछ पैसा मिला एक लैब बनाने के लिए, ठीक है, पूरा एस्टिमेशन आ जाएगा। तो पूरा नोट शीट में वो पूरा मेंटेन होगा कि कितना एरिया में लैब बनेगा, उसके लिए कितना पैसा आया है, कैसे टेंडर होगा, कैसे टेंडर को फाइनलाइज किया जाएगा, कैसे अवार्ड ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिया जाएगा, वो डिटेल्स रहेगा। फिर उसको अप्रूवल के लिए हम भेजेंगे हायर अथॉरिटी को, समझ में आ रहा है कि नहीं, वो नोट शीट में आएगा। तो चाहे सजेशंस, चाहे इंफॉर्मेशन, चाहे एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस, ये सब जब आ जाता है वो नोट शीट में आता है। बहुत ब्रीफ एंड कॉन्साइज होता है, बहुत क्लियर होता है और डायरेक्ट होता है, ठीक है। उसके ऊपर आगे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो द रिमार्क रिकॉर्डेड ऑन ए केस टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल इंक्लूड्स ए समरी ऑफ प्रीवियस पेपर्स। कुछ प्रीवियस पेपर्स के ऊपर समरी, की स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चंस, रिक्वायरिंग डिसीजन, सजेशंस रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ एक्शन एंड फाइनल ऑर्डर्स देयरऑन, ये सब नोट शीट में आएगा। सपोज कुछ प्रीवियस पेपर्स है, उसके ऊपर एक समरी, स्टेटमेंट, एनालिसिस द क्वेश्चंस, रिक्वायरिंग डिसीजन, सपोज नीड डिसीजन about a particular activity, need suggestions regarding the course of action, क्या होगा, suggestions, ये सब नोट शीट में आएगा, राइट। इसको अच्छे से याद रखना है, आगे में थोड़ा उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। चलो नेक्स्ट टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट बुक। प्रेसिडेंट बुक इज ए रजिस्टर इन ए प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। ये एक पूरा प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, एक रजिस्टर है, रजिस्टर में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है टू कीप नोट ऑफ इंपॉर्टेंट रूलिंग एंड डिसीजंस हैविंग ए प्रेसिडेंट वैल्यू फॉर रेडी रेफरेंस। फास्ट याद रखना है, ये एक रजिस्टर है, रजिस्टर में ऑटोमेटिकली उसका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है। फॉर्मेट में क्या मेंशन होगा, कुछ इंपॉर्टेंट रूलिंग्स एंड डिसीजंस मेंशन होगा, जिसको रिफर करके, ठीक है, आगे में जो केसेस है उसको सॉल्व किया जाएगा। ओके, इन सब्सिक्वेंट टाइम और इन पोस्टरिंग टाइम दिस टाइप ऑफ रूल्स एंड इंपॉर्टेंट रूल्स एंड डिसीजंस मस्ट बी यूज्ड एज ए रेफरेंस फॉर फोर्थकमिंग केसेस, फॉर सब्सिक्वेंट केसेस। तो आपको याद रखना है, यहां पर एक रजिस्टर है, रजिस्टर में प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेगा, जिसको हम फ्यूचर केस में हम उसको रिफर करेंगे। ओके, राइट। चलो नेक्स्ट वन, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग द प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग ए फाइल आफ्टर एक्शन ऑन ऑल द इश्यूज।
जो भी इश्यूज था, एक पर्टिकुलर केस में जो भी इश्यूज था उसके ऊपर एक्शन हो गया। ओके, अभी फाइल को क्लोज किया जाएगा, मगर फाइल को इमीडिएट इसके माने बिफोर क्लोजिंग द फाइल इट मस्ट बी रिकॉर्डेड। क्या क्या कौन सा इश्यूज के ऊपर क्या एक्शन हुआ उसको रिकॉर्ड किया जाएगा, देन फाइल को क्लोज किया जाएगा। वही है रिकॉर्डिंग। जो भी एक्शंस इश्यूज के ऊपर लिया गया वो रिकॉर्ड होगा। रिकॉर्डेड होने के बाद एक्चुअली जब पूरा केस सॉल्व हो जाएगा व डिस्पोज हो जाएगा तब फाइल को क्लोज किया जाएगा। तो भाई जो इश्यूज के ऊपर जो एक्शन मेंशन होगा, व्हाट टाइप ऑफ एक्शन हैज टेकन ओवर द इश्यूज, इट मस्ट बी रिकॉर्डेड, देन आफ्टर दैट द फाइल वुड बी क्लोज्ड। ठीक है, तो जो इश्यूज के ऊपर जो भी रिकॉर्डेड हुआ उसको हम रिकॉर्डिंग बोलेंगे। अभी नेक्स्ट है रिफरेंस फोल्डर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रेसिडेंट बुक रिफरेंस फोल्डर बहुत इंपॉर्टेंट है इन रिलेशन टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। आ जाओ, पर्टिकुलर सब्जेक्ट पर्टिकुलर केस में एक फोल्डर होगा। वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर केस के ऊपर जितना इंफॉर्मेशन है, जितना सर्कुलर से, नोटिस है, मेमोरेंडम है, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है वही फोल्डर में रहेगा पर्टिकुलर केस के ऊपर। कंटेनिंग कॉपीज ऑफ रिलेवेंट रूल्स, ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस एटसेट्रा। और इसको क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में उसको अरेंज किया जाएगा फोल्डर में। एक पर्टिकुलर केस, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जितना भी इंफॉर्मेशन मिला, चाहे जो भी कॉपीज हो कि रूल्स हो, चाहे ऑर्डर्स हो, चाहे इंस्ट्रक्शंस हो, सभी को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करके एक फोल्डर में रखा जाएगा। तो वो रेफरेंस फोल्डर है, क्योंकि आगे में फ्यूचर में जो भी केसेस आएगा, सपोज एक पर्टिकुलर केस में एक्चुअली ये केस को रिफर किया जाएगा, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर को रिफर किया जाएगा, तो इसी रेफरेंस फोल्डर से मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और पर्टिकुलर केस के ऊपर ये रेफरेंस फोल्डर होगा, पर्टिकुलर केस के ऊपर डिटेल्स रहेगा उसमें। ठीक है, नेक्स्ट वन रूटीन नोट। रूटीन नोट क्या है? एक टेम्पोररी वैल्यू है जिसको बोलते हैं एफिमरल इंपोर्टेंस। टेम्पोररी वैल्यू और एफिमरल इंपोर्टेंस जो सेकेंडरी इंपोर्टेंस होता है, रिकॉर्डेड आउटसाइड, फाइल में एक्चुअली रिकॉर्डेड नहीं होगा, आउटसाइड में होगा। ए रिकॉर्ड ऑफ कैजुअल डिस्कशन और ए नोट ऑन ए पॉइंट ऑफ सेकेंडरी इंपोर्टेंस। रूटीन नोट सेकेंडरी इंपोर्टेंस आपको याद रखना है। ओके, इसका इंपोर्टेंस जो होगा सेकेंडरी होगा और इसको फाइल में एक्चुअली रिकॉर्डेड नहीं किया जाएगा, और ये टेम्पोररी वैल्यू जिसका रहेगा, ठीक है, उसको हम रूटीन नोट बोलेंगे। नेक्स्ट वन रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। रनिंग समरी, एक पर्टिकुलर केस के ऊपर इंफॉर्मेशंस एक्चुअली कंटिन्यूअसली जो भी केस के ऊपर हम डिसीजन ले रहे हैं वो रिकॉर्डेड होता जाएगा। ठीक है, इन रिलेशन टू केस मीन्स समरी ऑफ द फैक्ट्स ऑफ द केस अपडेटेड फ्रॉम टाइम टू टाइम। केस के ऊपर जो भी समरी है वो अप टू डेट होता रहेगा, क्योंकि कुछ कुछ न्यू इंफॉर्मेशन आएगा उसको हम ऐड करते जाएंगे। पर्टिकुलर केस के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आता रहेगा हम उसको ऐड करते जाएंगे फॉर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द केस। राइट, वो रनिंग समरी है। केस को हम डिटेल्स में लिखेंगे ना, उसमें जो भी इंफॉर्मेशन आएगा उसमें उसको ऐड करके हम अप टू डेट करते रहेंगे फॉर सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट ऑफ द केस। वही है रनिंग समरी ऑफ फैक्ट्स। नेक्स्ट वन सिक्योरिटी ग्रेडिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ऑफिशियल प्रोसीजर में। सिक्योरिटी मार्किंग ऑफ क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स को हम क्लासिफाई करेंगे, कॉन्फिडेंशियल, रेस्ट्रिक्टेड, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, लाइक दिस। डॉक्यूमेंट्स को क्लासिफाई कैटेगराइज किया जाएगा। कौन सा कॉन्फिडेंशियल, उसके ऊपर मार्क कर दिया जाएगा डॉक्यूमेंट के ऊपर। रेस्ट्रिक्टेड है, सीक्रेट, टॉप सीक्रेट, ये सब जो मार्किंग को हम सिक्योरिटी ग्रेडिंग बोलते हैं। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर जो मार्किंग होता है, समझ में आया? नेक्स्ट वन स्टैंडिंग गार्ड फाइल। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। स्टैंडिंग गार्ड फाइल, एक पर्टिकुलर केस और पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर एक फाइल होगा, उसमें सभी इंफॉर्मेशन रहेगा जिसमें हमको बैकग्राउंड ऑफ द केस मिल जाएगा। हम सपोज कभी भी एक न्यू ऑफिसर सपोज आ जाएगा, उसको केस के ऊपर सपोज ही और सी वांट टू नो अबाउट द केस,
he or she want to collect some information और he or she want to review the case, तब वो गार्ड फाइल, जो पर्टिकुलर केस के ऊपर जो गार्ड फाइल है उसको रिफर किया जाएगा। तो स्टैंडिंग गार्ड फाइल ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट का याद रखना है, ऑन ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट इज यूजफुल टू ऑफिसर्स एंड स्टाफ्स। बहुत यूजफुल है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो स्टैंडिंग गार्ड फाइल है बहुत यूजफुल होता है ऑफिसर्स एंड स्टाफ के लिए। कुछ कारण देखेंगे। फर्स्ट वन क्या है, इट गिव्स ए बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीज्योर ऑन द रिलेवेंट सब्जेक्ट टू न्यू ऑफिसर्स। जो न्यू ऑफिसर्स आया वो इमीडिएटली हस्टेनली ही और सी कैन नो द बैकग्राउंड ऑफ द पॉलिसी एंड प्रोसीज्योर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट के ऊपर जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीज्योर्स है उसका बैकग्राउंड उसको पता चल जाएगा, जो न्यू ऑफिसर सपोज आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि गार्ड फाइल जो मेंटेन किया जाता है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर और पर्टिकुलर केस के ऊपर होता है। इट एनेबल्स क्विक सबमिशन एंड डिस्पोजल ऑफ द केसेस। तो क्या होगा ना, ये जो गार्ड फाइल है इसके वजह से क्या होगा ना, क्विकली एज सुन एज पॉसिबल केसेस कैन बी डिस्पोज्ड, क्योंकि पूरा इंफॉर्मेशन उसमें है, पूरा सब्जेक्ट के ऊपर जो भी पॉलिसीज है, प्रोसीज्योर है, नोटिसेस है, इसमें है। ठीक है, तो उसको रिफर करके हम केस को प्रोसीड करते रहेंगे। ठीक है, तो विद इन शॉर्ट वाइल, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम द केस कैन बी डिस्पोज्ड। नेक्स्ट वन, इट टेक्स द प्लेस ऑफ वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल्स पुट अप फॉर रिफरेंस एंड इज कैपेबल ऑफ बीइंग पुट अप फॉर ए शॉर्ट नोटिस। जो फाइल था एक वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल था, तो वो ओल्ड फाइल के जगह हम इसको ले जाएंगे, गार्ड फाइल को ले जाएंगे, क्योंकि एक वॉल्यूमिनस ओल्ड बहुत कुछ ओल्ड फाइल्स में बहुत कुछ चीज़ रह गया, उसको रिफर करके हमको ढूंढना, सर्च करना, ओके, एंड देन टेक आउट सम इंफॉर्मेशन, ये डिफिकल्ट होता है। तो उसके जगह इन प्लेस ऑफ इट एक्चुअली क्या होगा, हम गार्ड फाइल बना देंगे। तो ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है स्टाफ्स एंड ऑफिसर्स के लिए। तो गार्ड फाइल कैसे यूजफुल होता है, न्यू ऑफिसर को इजीली पता चल जाता है पॉलिसी एंड प्रोसीज्योर रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, इट मीन्स background of the suppose policy and procedure, easily he or she can detect background of the policy and procedure related to the particular subject or particular case, easily he or she can detect from the guard file। और उसमें पूरा इंफॉर्मेशन है तो इजीली शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में केस को डिस्पोज किया जा सकता है। और ये क्या है, जो एक वॉल्यूमिनस फाइल था, ओल्ड फाइल था, ये क्या करता है, उसको रिप्लेस कर देता है गार्ड फाइल, रिप्लेस द वॉल्यूमिनस ओल्ड फाइल्स। नेक्स्ट क्या है, इट हेल्प्स द ऑफिस इन लोकेटिंग एंड द प्रीवियस पेपर्स हैविंग बियरिंग ऑन द सब्जेक्ट के ऊपर कोई प्रीवियस पेपर है इसी गार्ड फाइल से मिल जाएगा, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर केस में जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है, जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीज्योर्स है, जो भी सर्कुलर्स है, इसमें है। ठीक है कि नहीं, तो इजीली हम लोकेट कर पाएंगे। और गार्ड फाइल के ऊपर नेम भी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट नेम है, नहीं कि, तो उसमें पूरा वही रिलेटेड टू दिस सब्जेक्ट सभी इंफॉर्मेशन हम इसमें है गार्ड फाइल में। 3 पार्ट्स को देखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गार्ड फाइल का 3 पार्ट्स। फर्स्ट वन है रनिंग समरी ऑफ द प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसी रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट विथ नंबर एंड डेट ऑफ रिलेवेंट डिसीजंस और ऑर्डर्स कोटेड इन मार्जिन अगेंस्ट ईच। तो एक रनिंग समरी ऑफ द जो भी प्रिंसिपल्स, जो भी पॉलिसीज रिलेटेड टू द सब्जेक्ट, उसका नंबर, डेट ऑफ रिलेवेंट, किस डेट में वही पॉलिसीज एंड प्रिंसिपल्स के ऊपर डिसीजन हुआ था कि ऑर्डर्स हुआ था। तो पहले हम मार्जिन में पूरा है कि कौन पॉलिसी नेम है और ये सर्कुलर नंबर ये है, इसी डेट में एक्चुअली इसके ऊपर डिसीजन हुआ था और ये पेज नंबर में है। तो उसी पेज को जाके हम गार्ड फाइल में हम डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, कॉपीज ऑफ द डिसीजंस और जो भी पॉलिसीज एंड प्रोसीज्योर रिलेटेड टू द पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो भी डिसीजंस और ऑर्डर्स लिया गया है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में है, डेट वाइज है। कॉपीज ऑफ द डिसीजंस और ऑर्डर्स रिफर्ड टू अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। ठीक है, ये भी सेकंड पार्ट में आ गया।
और एक मॉडल फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन इसको कहा जाता है। क्योंकि जो प्रेजेंट केस है, प्रेजेंट केस को हम प्रोसीड करने के लिए हम गार्ड फाइल, एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिफरेंस चाहिए, तो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का रिफरेंस चाहिए तो हम गार्ड फाइल से निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो ये 3 पार्ट्स है। एक पूरा रनिंग समरी है, प्रिंसिपल्स एंड पॉलिसीज, और एक है जो भी कॉपीज ऑर्डर्स है वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज होकर है पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, और ये एक मॉडल है फॉर द कम्युनिकेशंस। ठीक है, टू बी यूज्ड एट डिफरेंट स्टेजेस। समझ में आ गया? ये 3 पार्ट्स आपको याद रखेंगे गार्ड फाइल के ऊपर। अनदर कंसेप्ट आ गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैंडिंग नोट। स्टैंडिंग नोट इज ए कंटिन्यूअस नोट एक्सप्लेनिंग अमंग अदर थिंग्स द हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉलिसी ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। ये क्या है? एक ब्रीफ नोट होता है पर्टिकुलर सब्जेक्ट और पर्टिकुलर केस के ऊपर, एक ब्रीफ नोट। ब्रीफ नोट में आपको पता चल जाएगा उसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो स्टैंडिंग एक ब्रीफ नोट, बेसिकली जस्ट यू रिमेंबर इट इज रिलेटेड टू द ब्रीफ नोट की समरी रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर केस, और ब्रीफ समरी रिलेटेड टू ए पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो ये कब यूजफुल होगा? कंप्लीट बैकग्राउंड मटेरियल फॉर रिव्यू ऑफ द एग्जिस्टिंग पॉलिसी। जब एग्जिस्टिंग पॉलिसी व प्रोसीजर को रिव्यू किया जाएगा तब हमको कंप्लीट बैकग्राउंड को जाना है, तब हमको वो स्टैंडिंग नोट में मिल जाएगा। जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी प्रोसीजर है हम उसको थोड़ा रिव्यू करना चाहते हैं, उसमें थोड़ा मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो हमको फर्स्ट वो सब्जेक्ट के ऊपर हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहिए, पर कंप्लीट बैकग्राउंड चाहिए, उसका बैकग्राउंड क्या था, तो वो हमको स्टैंडिंग नोट में मिल जाएगा। क्योंकि स्टैंडिंग नोट क्या है? एक समरी है, ब्रीफ समरी है रिलेटेड टू द सब्जेक्ट और रिलेटेड टू द केस और रिलेटेड टू द पॉलिसी। नेक्स्ट वन है ब्रीफ फॉर प्रिपेयरिंग रिप्लाईज टू पार्लियामेंट क्वेश्चंस। कभी कभी क्या है, चाहे पार्लियामेंट, चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली, कोई डिपार्टमेंट को सर्कुलर भेजता है कि इसी क्वेश्चंस के ऊपर आंसर आपको देना है। आपको प्रेसिडिंग टाइम में ये मिल जाता है ऑर्गेनाइजेशन को, डिपार्टमेंट को, कि इसी डेट में पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में इसी क्वेश्चंस के ऊपर आंसर देना है, और ये पर्टिकुलर केस के ऊपर, ये पर्टिकुलर केस और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर, ये पर्टिकुलर पॉलिसी के ऊपर। तो ब्रीफ नोट है, वहां पर जो समरी है वही समरी से हम इजीली हम आंसर दे पाएंगे, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट, पॉलिसी और प्रोसीजर के ऊपर ब्रीफ समरी है, तो उससे इजीली आंसर दे दिया जाएगा। तो इसीलिए ये स्टैंडिंग नोट को मेंटेन किया जाता है। क्लियर? सो व्हेन एनी टाइप ऑफ सपोज रिप्लाई एक्चुअली नीड बाय द पार्लियामेंट थ्रू क्वेश्चंस एंड नीड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली थ्रू क्वेश्चंस, पहले हमको मिल जाएगा वो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को किस क्वेश्चन के ऊपर एक्चुअली आपको आंसर देना है, तो इमीडिएटली क्या है उसके ऊपर ब्रीफ जो स्टैंडिंग नोट है वो हेल्पफुल होगा, क्योंकि पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर तो स्टैंडिंग नोट है ना। तो सेकेंड वन। थर्ड वन, इंडक्शन और ट्रेनिंग मटेरियल फॉर न्यू इनकम्बेंट्स। जो न्यूली ज्वाइन करेंगे, जो न्यू अपॉइंटीज है, जो न्यू इनकम्बेंट्स है, उनका जो इंडक्शन और ट्रेनिंग प्रोग्राम में ये स्टैंडिंग नोट को फॉलो किया जाता है। उनको इसी से इंफॉर्मेशन दिया जाता है, एक पर्टिकुलर पॉलिसी, प्रोसीजर, ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर उनको इंफॉर्मेशन ब्रीफली दिया जाता है। तो ये है एक कंप्लीट बैकग्राउंड, और एक है रिप्लाईज टू पार्लियामेंट क्वेश्चंस, एंड थर्ड वन ऑल्सो इट इज यूजफुल फॉर इंडक्शन और ट्रेनिंग मटेरियल फॉर न्यू इनकम्बेंट्स। समझ में आ गया? तो ये एक ब्रीफ समरी है, एक ब्रीफ नोट है, ठीक है, रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। ये दोनों के बीच में डिफरेंस देख लेंगे, स्टैंडिंग गार्ड फाइल एंड स्टैंडिंग नोट। स्टैंडिंग गार्ड फाइल में 3 पार्ट्स है, हम देख चुके हैं 3 पार्ट्स को, मगर स्टैंडिंग नोट में ओनली 1 पार्ट इज देयर। स्टैंडिंग 3 पार्ट्स, इट इज 1 पार्ट। स्टैंडिंग गार्ड फाइल, इट contains extracts of notes and correspondence from earlier papers and model forms in which orders are to be communicated. ठीक है? स्टैंडिंग नोट में इट इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव as it contains the background history, statistics and development of the policy and procedure, and
contains all available material for answering parliament questions on the subject. It is more or less a comprehensive brief on the subject. एक सब्जेक्ट के ऊपर एक समरी, ब्रीफ समरी है, ओके, जो कंटेंट करता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, स्टैटिस्टिक्स, डेवलपमेंट ऑफ द पॉलिसी, प्रोसीजर, एवरीथिंग है सब्जेक्ट रिलेटेड टू द सब्जेक्ट। मगर जो गार्ड फाइल था उसमें मैं बोल चुका हूं, पर्टिकुलर जो केस है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर जो भी इंफॉर्मेशन आपको वहां पर गार्ड फाइल में मिल जाएगा। जो भी नोटिसेस है, जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी सर्कुलर है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर गार्ड फाइल है और वहां पर डॉकेटिंग किया गया है। जो सर्कुलर नोटिसेस का जो नंबर है, कौन सा डेट में उसके ऊपर डिसीजन लिया गया था, वो डिटेल्स है, तो उसको हम रिफर करके हम इंफॉर्मेशन पता कर सकते हैं, राइट। और थर्ड डिफरेंस, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन द टाइप सब्जेक्ट, पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। यहां पर जो स्टैंडिंग नोट, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन एनी आइटम which may be difficult, complicated, required for day to day reference और आज हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस। ऐसा कुछ सब्जेक्ट है जिसका हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस है और डिफिकल्ट, कॉम्प्लिकेटेड है, उसके ऊपर एक ब्रीफ नोट कर दिया जाता है, एक ब्रीफ समरी कर दिया जाता है, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी हमको उसके ऊपर रिप्लाई देना है, उसको सपोज कोई पॉलिसी प्रोसीजर को रिव्यू करना है, तो तब हमको हिस्टोरिकल बैकग्राउंड चाहिए कि वो सब्जेक्ट का बैकग्राउंड को जाएंगे, तो इसमें हमको बहुत हेल्पफुल होता है, ठीक है। नेक्स्ट वन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट है। स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट एक कंप्लीट सीट होता है जो पूरा ऑलरेडी वो एक टेम्पलेट की तरह, वो आप देखा होगा अभी ऑनलाइन में जैसे हमको डाटा अभी मांग रहे हैं, वो पूरा सिस्टमेटिक है, ओनली हम डाटा भरेंगे, पूरा स्ट्रक्चर पूरा दे दिया गया है, उसमें हमको ओनली डाटा भरना है। जैसे आज़ादी का अमृत महोत्सव अभी चल रहा है, डिफरेंट प्रोग्राम से, तो पूरा उसमें माने पूरा दिया, वो स्ट्रक्चर है, कौन सा प्रोग्राम है, उसमें कितना पार्टिसिपेट किया, पूरा डिटेल्स, हम ओनली डाटा भरेंगे। तो वैसा ही एक स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट होता है, उसमें जैसे चाहे पेंशन, चाहे जीपीएफ, चाहे सीपीएफ, चाहे एलटीसी, ठीक है, उसके ऊपर जो इंफॉर्मेशन है वो पूरा उसमें वो प्रोसेस सीट में है, उसके ऊपर क्या पॉलिसीज है, ठीक है, तो उसमें डाटा ऑलरेडी है, तो वही मीन्स स्टैंडर्ड स्केलेटन, ये एक है नोट डेवलप फॉर ए रिपीटेटिव आइटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीटेटिव आइटम ऑफ, जहां पर रिपीटेटिव आइटम ऑफ वर्क आएगा वहां पर स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट, वो टेम्पलेट को हम यूज करेंगे। तो रिपीटेटिव आइटम वर्क यही है, चाहे एलटीसी, टीए, ट्रैवलिंग अलाउंस, लीव ट्रैवल कंसेशन, पेंशन, जनरल प्रोविडेंट फंड, कंट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फंड, ये सब रिपीटेटिव आइटम होता है। उसके ऊपर क्या है, एक स्केलेटन नोट होता है, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट होता है, उसमें वो जो प्रोसीजर्स है वो क्लियर उसमें मेंशन है, वो स्टैंडर्ड प्रोसीजर सीट में एक टेम्पलेट जैसा उसमें पूरा मेंशन है। द वेरियस डिटेल्स ऑफ द फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ ईच केस आर प्रोवाइडेड बाय द डीलिंग ऑफिसर। तो उसमें जो स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट, जो मैं जैसा भी बताया था, एक स्टैंडर्ड सीट होता है, उसमें डिटेल्स, फैक्ट्स, जो फिगर्स उसमें डीलिंग ऑफिसर उसको प्रोवाइड करता है और उसको माने वो इंफॉर्मेशन रहता है, ठीक है। देखिए सीक्वेंस में क्या आ जाता है, फैक्ट्स ऑफ द केस, फैक्ट्स आ जाता है, रूल्स रेगुलेशंस आ जाता है, सजेशंस आ जाता है, पॉइंट्स ऑन विच डिसीजन इज आउट, कौन सा डिसीजन के ऊपर हमको सपोज इट मीन्स वी नीड बेसिकली पॉइंट्स ऑन विच डिसीजन इज आउट, and just it means we are seeking, we need some information, indicate who the competent authority, so ये डिटेल्स ना एक स्केलेटन सीट में, एक स्टैंडर्ड सीट में पूरा इंफॉर्मेशन होता है। तो पर्टिकुलर में जैसे बताया जो रिपीटेटिव नेचर होता है, रिपीटेडली एक्चुअली एम्प्लॉइज को इंफॉर्मेशन चाहिए रिपीटेडली, जैसे जीपीएफ, चाहे सीपीएफ, चाहे पेंशन, चाहे एलटीसी, चाहे टीए, ट्रैवलिंग, ये सब रिपीटेटिव नेचर होता है। तो उसके ऊपर जो रूल्स रेगुलेशंस है एक स्टैंडर्ड सीट में पूरा इंफॉर्मेशन है, एक स्केलेटन सीट में है, ठीक है। नेक्स्ट वन ई फाइल, सॉरी इन ई फाइल है, ठीक है, ये ई फाइल है। वन में डिजाइन एंड कस्टमाइज टेम्पलेट टू प्रोसेस केसेस
रिपीटेटिव नेचर लाइक एडवांस और विथड्रॉल फ्रॉम जीपीएफ एटसेट्रा। तो ये मैं वही बताया। तो जो ई फाइल में एक डिजाइन, एक कस्टमाइज टेम्पलेट कर दिया जाएगा, उसमें जो रिपीटेटिव नेचर का जो इशूज है लाइक एडवांस और विथड्रॉल फ्रॉम द जीपीएफ, इसके ऊपर जो पूरा डाटा वहां पर रहेगा, एक टेम्पलेट, एक डिजाइन बना दिया जाएगा, एक सीट बना दिया जाएगा, उसमें जो कॉमन रूल्स रेगुलेशंस रह जाएगा। आपको कोई इंफॉर्मेशन चाहिए, ओनली डीलिंग ऑफिसर को डाटा प्रोवाइड करिएगा, डाटा देके आपको उसका एक कॉपी निकाल के आपको दे सकते हैं, मगर जो कॉमन रूल्स उसमें रहेगा ऑलरेडी। ठीक है, नेक्स्ट वन, अभी वही नोटिंग के ऊपर आएंगे। नोट शीट के ऊपर मैं बता चुका हूं, इन्फॉर्म कर चुका हूं, मगर थोड़ा कुछ पॉइंट्स के ऊपर हम ध्यान देंगे। नोट्स आर रिटन रिमार्क्स रिकॉर्डेड ऑन ए पेपर अंडर कंसिडरेशन टू फैसिलिटेट इट्स डिस्पोजल। इट शुड कंसिस्ट ऑफ ए प्रेसिज ऑफ प्रीवियस पेपर। इसको मैं डिस्कस कर चुका हूँ। प्रेसिज ऑफ प्रीवियस पेपर, स्टेटमेंट, एनालिसिस ऑफ क्वेश्चंस और क्वेश्चंस रिक्वायरिंग डिसीजन, सजेशंस रिगार्डिंग द कोर्स ऑफ एक्शन एंड फाइनल ऑर्डर्स पास देयर ऑन। मैं बोला था जो नोटशीट होता है, नोटशीट के ऊपर मैं बोल चुका हूँ, वही चीज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट वन, ए नोट रिकॉर्डेड बाय ए मिनिस्टर। इसको भी बोल चुका हूँ, मिनट। ए नोट रिकॉर्डेड बाय ए मिनिस्टर, द प्राइम मिनिस्टर, द वाइस प्रेसिडेंट और द प्रेसिडेंट शुड बी रिफर्ड टू एज मिनट। इसको मैं बोल चुका हूँ। कुछ गाइडलाइंस देख लेंगे नोट शीट के ऊपर, ये बहुत इंपॉर्टेंट। फर्स्ट वन, ऑल नोट्स शैल बी रिकॉर्डेड ऑन नोट शीट ग्रीन शीट। अभी जैसे जो हम नोट शीट बनाते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग डेस्कटॉप एंड लैपटॉप में बनाएंगे, वो ग्रीन शीट होगा। रॉप स्केच जो होता है, ड्राफ्ट होता है, वो येलो शीट होता है। तो ये जो ग्रीन शीट होता है, ये बेसिकली नोट शीट होता है, आपको याद रखना है। ऑल नोट्स शैल बी रिकॉर्डेड ऑन नोट शीट। ठीक है, ऑल नोट्स शुड बी कंसाइज एंड टू द पॉइंट। एक्सेसिव नोटिंग शुड बी अवॉइडेड। जो पॉइंट के ऊपर हमको डिसीजंस चाहिए, जो पॉइंट्स के ऊपर हम स्टेटमेंट देना चाहते हैं, ओके, ऐसा कुछ क्वेश्चंस को एनालाइज किया है टू द पॉइंट, कुछ सजेशंस पूरा पॉइंट में होगा। ए सिंपल एंड डायरेक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग। नेक्स्ट वन, ए सिंपल एंड डायरेक्ट स्टाइल ऑफ राइटिंग should always be adopted. Any complicated and ambiguous language should be avoided. A note will be divided into paragraphs. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। A note will be divided into paragraphs also of a convenient size. Paragraphs should be serially numbered and may also have brief titles if necessary. तो paragraph का brief title हम दे सकते हैं, numbering भी कर सकते हैं। When passing orders or making suggestions, an officer should confine the note to the actual points. तो जब कोई सजेशंस, जो ऑफिसर जब सजेशन देंगे, वो एक्चुअल पॉइंट्स को देखेंगे, रादर देन रिपीटिंग और रीइटरेटिंग द ग्राउंड ऑलरेडी कवर्ड इन द प्रीवियस नोट्स। प्रीवियस नोट्स में जो भी पॉइंट्स था ऑलरेडी वो ऑफिसर स्टडी कर चुके हैं, उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। अभी आएंगे जो एक्चुअल पॉइंट्स, उसको स्टडी नहीं किया गया है प्रीवियस नोट्स में, उसके ऊपर ही वो सजेशंस देंगे। और एक है, इफ द लाइन ऑफ एक्शन सजेस्टेड इन द प्रेसीडिंग नोट। यदि प्रेसीडिंग नोट के ऊपर जो लाइन ऑफ एक्शन दिया गया था कि जो हायर अथॉरिटी होते हैं, हायर ऑफिसर होते हैं, हम नोट शीट लेकर जाते हैं और वो टू दी पॉइंट स्टडी करते हैं और उनका सजेशन देते हैं। या जो प्रीवियस नोट शीट में जो भी लाइन ऑफ एक्शन दिया गया था, यदि अभी हम जो नोट शीट लेकर गए हैं वो एक्चुअली अकॉर्डिंग टू दैट लाइन ऑफ एक्शन, तो वो ओनली सिग्नेचर लगाएंगे, क्योंकि प्रीवियस नोट शीट में वो लाइन ऑफ एक्शन के लिए बोले थे, कुछ डायरेक्शन दिए थे, उसी डायरेक्शन से अभी हम फिर नोट शीट बना के लाए हैं, तो वो ओनली सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलेंगे टाइप ऑफ केसेस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। क्वांटम ऑफ नोटिंग एंड फंक्शनल अप्रोच। एफिमरल केसेस, ओके, जो टेम्पररी होता है। रूटीन और रिपीटेटिव केसेस, ये भी रिपीटेटिव केसेस अभी स्टैंडिंग जो स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग सीट के ऊपर में बताया। एक्शन इन करेस्पॉन्डेंस केसेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस, प्लानिंग एंड पॉलिसी केसेस। इसको एक एक बार देखेंगे अच्छे से। फर्स्ट वन, एफिमरल केसेस, जो बेसिकली टेम्पररी होता है और सेकेंडरी इन नेचर होता है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें नोटिंग नहीं चाहिए, इसमें नोट शीट नहीं चाहिए। ओके, नो नोटिंग केसेस। द सेक्शन ऑफिसर और डेस्क फंक्शनरी शुड रिकॉर्ड द रीजंस इन ब्रीफ व्हाई नो एक्शन इज नेसेसरी। वो जो सेक्शन ऑफिसर है, जो डेस्क फंक्शनरी है, वो उसके ऊपर रीजंस लिखेंगे कि एक्शन यहाँ पर जरूरी नहीं है। एंड फाइल सच केसेस एट द
डार्क स्टेज इटसेल्फ। ठीक है, सच केसेस शुड बी केप्ट इन द फाइल ओ बंडल, इसको याद रखना है। सच केसेस शुड बी केप्ट इन द फाइल ओ बंडल and destroyed on 31st December of every year. These may also be returned in original to the sender recording requisite factual information. तो ये जो एफिमरल केसेस है, सेकेंडरी इन नेचर है, सेक्शन ऑफिसर और डेस्क फंक्शनरी वो क्या करेंगे, वो रीजन दे देंगे कि यहाँ पर एक्चुअली एक्शन का कोई जरूर नहीं है, तो उसको जो फाइल का जो बेसिकली जो जीरो बंडल होता है, सच केसेस शुड बी केप्ट इन द फाइल, ये जो जीरो बंडल उसको बोलते हैं, एंड डिस्ट्रॉयड ऑन 31st December of every year. Okay, these may also be returned in original to the sender. जो सेंडर उसको भेजा था, सपोज हम उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लेंगे, उसको हम भेज सकते हैं फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देके। तो ये जो जीरो बंडल है उसको डिस्ट्रॉय किया जाए 31st December, और ये टेम्पररी इन नेचर होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, रिपीटेटिव केसेस। रिपीटेटिव केसेस में अभी मैं डिस्कस किया जो स्केलेटन सीट, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट। स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट हम एक पूरा टेम्पलेट बना चुके हैं, और उसमें जो जीपीएफ चाहे सीपीएफ चाहे एलटीसी चाहे टीए चाहे पेंशन, उसके ऊपर जो कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी है, और एक सीट बनाया हुआ है। सपोज आपको कुछ जैसे एडवांस ये सब है ऑलरेडी, उसके ऊपर रूल्स रेगुलेशंस है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, नोट ये जो स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट, यहाँ पर कोई नोट सीट नहीं चाहिए, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट का यूज होता है रिपीटेटिव इन नेचर केस में। पूरा उसमें जो कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी है, और कुछ डाटा चाहिए, ओनली डीलिंग ऑफिसर क्या करेंगे, वो डाटा भरेंगे उसमें, और एक कॉपी निकाल के दे देंगे। तो विच मीन्स स्टैंडर्ड स्केलेटन नोट शुड बी डेवलप्ड इन प्री डिटरमाइन, ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड पॉइंट्स मीन्स कुछ मैंने इंपॉर्टेंट रूल्स रेगुलेशंस उसके ऊपर है। सपोज आप जीपीएफ एडवांस, जनरल प्रोविडेंट फंड के ऊपर एडवांस, उसको कॉमन रूल्स है, कॉमन रूल्स है, जो आप एडवांस लेंगे तो कितना होगा, कौन सा केस में, पर्पज क्या होगा, ये पूरा डिटेल्स कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस है। ओनली उसमें डाटा भर दिया जाएगा, आप कितना एडवांस लेंगे, और ये पूरा डिटेल्स है। एडवांस को मीन्स कितने इंस्टॉलमेंट्स में आप रिटर्न करेंगे, ये सब डिटेल्स है उसमें। तो उसमें एक्चुअली कोई नोटिंग नहीं चाहिए, ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोसेस यूनिट, जहां पर रिपीटेटिव केसेस होता है वहां पर स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट को आप फॉलो किया जाएगा। एक्शन इन कॉरेस्पॉन्डेंस केसेस, जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस केसेस है वहां पर भी नोट सीट नहीं चाहिए। दीज केसेस ऑल्सो डू नॉट रिक्वायर डिटेल नोटिंग, इट विल बी सफिशिएंट, वो ब्रीफ नोट बना देना है, और पैराग्राफ जैसा वी आर रिकॉर्डेड इंडिकेटिंग द इशू अंडर कंसिडरेशन एंड द सजेशन एक्शन। तो यहाँ पर भी एक डिटेल्ड नोटिंग नहीं चाहिए, यहाँ पर एक ब्रीफ नोट चाहिए। ये पैराग्राफ ऑल्सो वी आर रिकॉर्डेड इंडिकेटिंग द इशू अंडर कंसिडरेशन, अभी इशू अंडर कंसिडरेशन में है, एंड सजेस्टेड एक्शन, सजेशन आप दे दीजिए जो कॉरेस्पॉन्डेंस केसेस है। और जो लास्ट आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस, इसमें नोट सीट बनेगा। इन दिस केसेस डिटेल्ड नोट के व्हाट इज द प्रॉब्लम, हाउ हैज इट अराइजन, व्हाट इज द रूल, पॉलिसी और प्रेसिडेंट, व्हाट आर द पॉसिबल सॉल्यूशंस, व्हिच इज द बेस्ट सॉल्यूशन। तो ये नोट सीट में आ जाता है डिटेल्स प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस में। ठीक है, प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस में यहां पर एक डिटेल्स नोट होता है, यहां पर देखिए डिटेल्ड नोट प्रॉब्लम सॉल्विंग केसेस में, जो यहां पर जो क्वेश्चन है देखिए। ठीक है, व्हाट विल द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द प्रपोज सॉल्यूशन, तो ये सब डिटेल्स नोट होगा। नेक्स्ट वन, एक पॉलिसी एंड प्लानिंग केसेस में, दिस टाइप ऑफ केसेस शुड नॉट बी लार्ज इन नंबर एंड आर नॉर्मली डेल्ट विथ एट सफिशिएंटली हायर लेवल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ये जो पॉलिसी एंड प्लानिंग केसेस, ये हायर लेवल में एक्चुअली डिसीजन लिया जाता है। तो एक थॉरो एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नोटिंग डेवलप्ड सिस्टमेटिकली, ये हायर लेवल में होता है, थॉरो एग्जामाइन किया जाएगा, और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ नोटिंग डेवलप्ड सिस्टमेटिकली पॉलिसी एंड प्लान के ऊपर, बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट को चलेंगे, थोड़ा ड्राफ्टिंग के ऊपर जाएंगे। ए ड्राफ्ट इज ए रॉफ स्केच ऑफ ए कम्युनिकेशन, इसको याद रखना है। ड्राफ्ट इज ए रॉफ स्केच ऑफ कम्युनिकेशन टू बी इशूड आफ्टर अप्रूवल ऑफ द ऑफिसर कंसर्न, एंड ए ड्राफ्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग दिस रॉफ स्केच येलो पेज में। जब भी आप ड्राफ्टिंग बना रहे हो, एक्चुअली जब आप डेस्कटॉप में कि आप लैपटॉप में बना रहे हो, तो येलो पेज आपको फॉलो करना है ड्राफ्टिंग। ये अगर रॉफ स्केच होता है, जैसे जो मेमोरेंडम होता है कि लेटर होता है, ऑफिशियल लेटर, ये सब ड्राफ्टिंग कहा जाता है, क्योंकि नोट सीट आपको पता चल गया।
तो कहाँ पर ड्राफ्ट का जरूरत नहीं है, ये दो इंस्टांसेस हो या ड्राफ्ट इज नॉट नेसेसरी, ये दो केस है, ये दो केस को थोड़ा स्टडी कर दीजिए। कोई सेंडिंग एन एक्नॉलेजमेंट आप सेंड कर रहे हो तो यहाँ पर एक्चुअली ड्राफ्ट नहीं चाहिए। कोई रिपीटेटिव नेचर है, ठीक है, इन केस ऑफ रिपीटेटिव नेचर वेयर स्टैंडर्ड फॉर्म्स ऑफ ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म्स है ना, स्केलेटल फॉर्म, स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट अभी मैं बताया था स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट है, तो यहाँ पर भी ड्राफ्टिंग नहीं चाहिए क्योंकि ऑलरेडी स्टैंडर्ड प्रोसेस सीट में वो ऑलरेडी एक टेम्पलेट है, स्केलेटन है, उसमें जो भी रूल्स रेगुलेशंस ऑलरेडी कॉमन रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑलरेडी प्री डिटरमाइंड मैनर उसमें है ऑलरेडी, ठीक है। तो ये दोनों केस में चाहे रिलेटेड टू द एक्नॉलेजमेंट और रिपीटेटिव नेचर केस में ड्राफ्टिंग नहीं चाहिए। एग्जाम्पल ऑफ ड्राफ्ट लेटर, ऑफिस मेमोरेंडम, डेमी ऑफिस लेटर, इंटर डिपार्टमेंटल लेटर, इंटर डिपार्टमेंटल नोट, इसको ये सब ड्राफ्टिंग में आ जाता है। जो भी मेमोरेंडम है, जो ऑफिशियल लेटर है, ये सब ड्राफ्टिंग में आ जाता है, एक रॉफ स्केच होता है, ठीक है। टाइम लिमिट फॉर डिस्पोजल ऑफ केसेस, उसके ऊपर थोड़ा देखेंगे। जो केसेस है उसका टाइम लिमिट क्या है। टाइम लिमिट्स विल बी फिक्स्ड फॉर डिस्पोजल ऑफ एज मेनी टाइप ऑफ केसेस एज पॉसिबल हैंडल इन द डिपार्टमेंट थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस। डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस जैसा है वैसा ही इट मीन्स व्हाट टाइप ऑफ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस आर देयर अकॉर्डिंग टू दिस एक्चुअली इट मीन्स द टाइम लिमिट इज ऑलरेडी फिक्स्ड एंड अकॉर्डिंग टू strictly according to this stipulated time the cases must be disposed. जनरल रूल क्या बोलता है, नो ऑफिशियल shall keep a case pending for more than 7 वर्किंग डेज। जनरल रूल बोलता है कि यदि कोई भी केस में ऐसा कुछ स्पेसिफिक टाइम मेंशन नहीं है कि इसी स्पेसिफिक टाइम में आपको केस को डिस्पोज करना है, स्पेसिफिक टाइम नहीं है मीन्स 7 डेज के अंदर उसको डिस्पोज करना है, अनलेस हायर लिमिट्स हैव बीन प्रिस्क्राइब्ड फॉर स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ केसेस थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन। सो अदर केस में क्या है, डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन होता है कि इसी केस को आप इतना दिन के अंदर आपको डिस्पोज करना है। तो ऐसा कुछ डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस नहीं है तो वो केस को 7 वर्किंग डेज के अंदर डिस्पोज किया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 वर्किंग डेज आपको याद रखना है। अदर केस में डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जाएगा। ये प्रेस के ऊपर आ गया, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू द प्रेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेस इंफॉर्मेशन, प्रेस रिलीज, पब्लिकेशन, ये रिलेटेड में ऑफिशियल इंफॉर्मेशन जो होता है, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द प्रेस एंड ऑफिशियल इंफॉर्मेशन टू द प्रेस एंड अदर न्यूज मीडिया लाइक रेडियो टेलीविजन विल नॉर्मली बी कम्युनिकेटेड थ्रू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन न्यूज वो रेडियो टेलीविजन में पब्लिश होगा तो नॉर्मली उसको किसको कम्युनिकेट किया जाएगा ना, विल नॉर्मली बी कम्युनिकेटेड थ्रू द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो। तो थ्रू द हेल्प ऑफ द प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो उसको पब्लिश किया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन, अच्छा किसको ऑथराइज किया जाता है कुछ स्टेटमेंट देने के लिए मीडिया के सामने, बेसिकली ओनली मिनिस्टर्स, secretaries and other officers specially authorized on this behalf may give information, may give official information और भी accessible to the representative of the press। प्रेस के सामने कोई भी ऑफिशियल जो भी एम्प्लॉय है वो नहीं देगा। बेसिकली मिनिस्टर्स, सेक्रेटरीज एंड अदर ऑफिसर्स जिसको एक्चुअली ऑथराइजेशन मिला है वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, ऑफिशियल इंफॉर्मेशन के ऊपर वो स्टेटमेंट दे सकते हैं, ठीक है। प्रेस में सभी को नहीं देगा, पूरा मैंने बहुत सीक्रेट होता है, वो कॉन्फिडेंशियल होता है, तो एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेनेवर इट इज प्रपोज टू रिलीज, यदि कोई ऐसा ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को रिलीज किया जाएगा टू द प्रेस और टू होल्ड ए प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस ब्रीफिंग की पब्लिसिटी, ये सब देखिए इस केस में क्या है, पब्लिसिटी टू एन ऑफिशियल रिपोर्ट की एनी रेजोल्यूशन और एनी अदर पब्लिकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट कंसर्न। तो इसमें क्या होगा, किसको कंसल्ट किया जाएगा ना, AIO अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर को कंसल्ट किया जाएगा पहले इन एडवांस। डिपार्टमेंट क्या करेगा, इन एडवांस एक्चुअली कंसल्ट विथ अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर, चाहे कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस, चाहे कोई प्रेस ब्रीफिंग, कोई पब्लिसिटी ऑफ ऑफिशियल रिपोर्ट, कोई रेजोल्यूशन और एनी अदर पब्लिकेशन द डिपार्टमेंट कंसर्न। तो पहले डिपार्टमेंट कंसल्ट विथ, ये बहुत ही अक्रेडिटेड ओके इंफॉर्मेशन ऑफिसर इन एडवांस। तो वो AIO जो अक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन ऑफिसर है, वो जो ऑथराइज्ड ऑफिसर है, जो एक्चुअली प्रेस रिलीज का मेंबर है, ठीक है,
कि वो जो जिसको ऑथराइजेशन दिया गया है वो एक्चुअली कोई ऑफिशियल इंफॉर्मेशन को प्रेस के सामने दे सकता है, तो जो AIO है, एक्रेडिटेड इंफॉर्मेशन, उसके साथ टाइम टू टाइम कॉन्टैक्ट करेगा और एंड कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द वर्दी ऑफ पब्लिसिटी। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। लास्ट को चलेंगे बॉक्स ई, थोड़ा ई फाइल के ऊपर चलेंगे, ये लास्ट पार्ट आज का होगा। बॉक्स ई के ऊपर अभी देखेंगे, इसमें ई ऑफिस के ऊपर चले जाइए, ई ऑफिस के ऊपर चले जाइए। ब्रिंग अभी जो भी फाइल है, ई फाइल, आप लीव लेंगे, ई लीव, ई टूर, ये सब आ गया, डिजिटाइजेशन आ गया। तो ब्रिंग मोर एफिशिएंसी, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ये जो ई ऑफिस आ गया, ई फाइल, ओके, ये क्या है, बहुत हेल्पफुल क्या है ना, इसी से क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत एफिशिएंट होता है, ट्रांसपेरेंसी हो जाता है, जो लोगों का फेथ बढ़ जाता है और बहुत अकाउंटेबिलिटी, पूरा एकदम पूरा एक्यूरेट डाटा पब्लिक को मिलता है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी, कम प्रोडक्टिविटी क्या है, इट मीन्स मोर इंफॉर्मेशंस कैन बी गैदर्ड इन लेस टाइम, कम समय में ज़्यादा इंफॉर्मेशंस एक्चुअली गैदर होता है और उसको हम स्टोर कर देते हैं, प्रोसेस कर देते हैं। ई फाइल केस में फिजिकल में बहुत टाइम लगता है। यूनिफॉर्म एंड सीमलेस कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन द इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड एंड द एग्जिस्टिंग फिजिकल वर्ल्ड, ये एक सीमलेस कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक वर्ल्ड एंड एग्जिस्टिंग फिजिकल वर्ल्ड। और इसमें क्या है, ई फाइल नॉलेज में, KMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये जो नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में क्या आता है, गार्ड फाइल, स्टैंडिंग नोट, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग सीट, प्रेसिडेंट बुक, ये जो मैं डिस्कस किया, ये सब नॉलेज, ये सब आता है नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में। गार्ड फाइल क्या है, स्टैंडिंग नोट क्या है, प्रेसिडेंट बुक क्या है, फोल्डर फाइल क्या है, नहीं कि स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग सीट क्या है, सब डिस्कस में किया, वो आ जाता है। तो अभी ई फाइल, KMS, ई लीव, ये सब ई फाइल, KMS नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, ई लीव, ई टूर, और ये जो पर्सनल इंफॉर्मेशन सर्विस PIS जैसे सर्विस बुक, काम्स भी कोलाबोरेशन एंड मैसेजिंग सर्विस, सो कोलाबोरेट, सबको कोलाबोरेट करके कॉमन मैसेज देना है, तो ये सब आ जाता है, अभी बहुत इजी हो गया। ठीक है, ये सब ई ऑफिस में आता है। और वहां पर मैं थोड़ा बता दिया, कोलाबोरेशन एंड मैसेजिंग सर्विस, ओके, मैं नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम, नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में क्या क्या आएगा मैं सब डिस्कस कर चुका हूं, जैसे गार्ड फाइल है, स्टैंडिंग नोट है, स्टैंडर्ड प्रोसेसिंग सीट है, प्रेसिडेंट बुक है, फोल्डर फाइल है, सब जो इंफॉर्मेशन सबको मिला। ठीक है, अभी डिजिटाइजेशन में ई फाइल, क्योंकि मेन है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एफिशिएंसी, और मोर इंफॉर्मेशन मस्ट बी गैदर्ड इन लेस टाइम एंड इट कैन बी स्टोर्ड एंड प्रोसेस्ड, ओके, and also it is less time consuming one and faster service actually providing to the public। तो ये इंफॉर्मेशन था, सो 3 पार्ट्स में दे दिया। माय फ्रेंड्स, सपोज एनी where if you detect any type of fault, please forgive me, pardon me, so always I have tried my best actually to fulfill your need। तो आपका डिमांड से एक्चुअली बहुत डिफिकल्ट हुआ, बहुत टाइम लिया, तो ट्राई किया। मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चंस आएगा इसका बाहर से नहीं आएगा, तो अच्छे से प्रिपेयर करो, अच्छे से वीडियो को देखो, आगे मैं अच्छा वीडियो और लाऊंगा। सो थैंक यू एंड नमस्कार टू ऑल ऑफ यू।